गुड इवनिंग एवरीवन। अभी 2 मिनट में हम शुरू करा रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है हमारे साथ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी 2 मिनट लगेंगे कनेक्ट होने में। मैडम कनेक्ट नहीं हो पा रही है अभी। गुड इवनिंग मैम। हो गई ना? ठीक है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के समापन सत्र के इस मौके पर मैं अपने विशिष्ट अतिथियों और अपनी प्राचार्या और जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस सत्र की मॉडरेटर रहेंगी डॉक्टर प्रियंका कपूर, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। और मैं प्रियंका मैम को भी आमंत्रित करती हूं कि वे आए और इस सत्र की कार्यवाही को संपन्न करें। Thank you, ma'am. A very warm welcome to all the dignitaries gathered here. On behalf of our management of the college and IQAC committee, I feel highly privileged to welcome such an intellectual personalities among us. Dr. Dharmendra Singh Ubhaji and Ms. Professor M.K. Verma. I request our principal ma'am, Dr. Seema ji, to please welcome the personalities, intellectual personalities. Ma'am. Yes. Well, a very good evening to all of you. Both the guests have joined, and first I would like to invite Professor Mukesh Ranjan Verma ji, to start his address, and I would like Priyanka to shed a light on his achievements. Thank you, ma'am. Professor M.R. Verma. Professor M.R. Verma had his education in Bihar and at Allahabad University. In his 43 years of teaching career, he has served in 3 states. Presently, he is teaching in Gurukul Kangre University, Haridwar,
where he has joined as a professor in 1999. He has also been head of the department and Dean Faculty of Humanities, Dean Students Welfare, and also Controller of Examination at present. He has also officiated as a registrar and vice chancellor. He has, to his credit, 3 books with 35 research papers. I'm feeling immensely privileged to welcome you, sir. Please share your views and impart your knowledge among us. Welcome, sir. Professor M.R. Verma ji. सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. लग रही है कि चार्ज नहीं कर रहा था पहले से. मैम शायद उनका वो नेटवर्क दिक्कत हो रही है मैम, उन्हें वो दोबारा रीजॉइन करेंगे शायद मैम, अभी दिखाई नहीं दे रहे. ओके ओके. और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं मैम वो है. तो so let us start with him. Yes, Dharmendra Singh. Sorry for the inconvenience. Professor M.R. Verma ji will join us later. So I now request Dr. Dharmendra Singh Uba ji to welcome the session. He is presently Principal GSDGS Khalsa College, Patiala, which is an autonomous college with A NAC grade college with CPE status. सर आपका कनेक्शन नहीं हो रहा He ना. also headed different administrative posts in his 29 years of teaching experience, along with being the writer of 58 books and many national and international research papers. He is also member of many academic and governing bodies. Not only this, to his fame, he has attended, chaired many courses, seminars, conferences, and talks in India as well as abroad. He has many feathers to his cap and has numerous laurels to his name. I welcome you, sir, to impart your knowledge and illuminate our minds with it. Welcome, sir. Thank you very much, Dr. Seema Jain and the members who have joined for the Faculty Development Program. Very good evening to all of you. Am I audible properly? Priyanka, Yes, sir. Thank you so much. Thank you so Yes. much. एक शायर ने लिखा है, क्यों किसी को हाले दिल सुनाएं, क्यों किसी को हाले दिल सुनाएं, क्यों किसी को राज़दां बनाएं, तुझ ही से मांगे तुझ ही से पाएं, कि तुझसे ही लो लगी हुई है, ये सब तेरा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई. Very nice. We the teachers, always at a prestigious position, at a fortunate position, at a blessed position, that we are the teachers. The reason being, it's the only factory of the world where the human beings are produced. Otherwise, क्या होता है? Everywhere else, there is production of goods, there is production of machinery, there are production of many other materials. और ये factory एक ऐसी factory है, यहाँ we think of producing and we are producing the human beings. Or I always say, because I belong to a family of teachers. My father retired as a professor in English. My wife is a teacher. My sister is a teacher. My brother-in-law is a teacher, and all my cousins, they are
in the teaching fraternity. And we are teachers by choice. खुद आए हैं इस प्रोफेशन में, इंडस्ट्री में जा सकते थे. I am a student of management and commerce. I had a lot of opportunities to be there in the industry, but I preferred that I should be a teacher. The reason being, it's the only and only profession which still is a noble profession in spite of having all the good salaries and everything else. And when we talk of education, when we talk of the quality improvement in higher education, when we say that how can we cope up with the coming scenario, because this COVID-19 has created many hustles and bustles in the whole system. When I received the document from University Grants Commission, giving the hundreds of options for many things, I thought, what will happen? My dear friends, I just want to be sharing with you in around January. I don't know why that thought process came to my mind. I had a meeting of my staff members. I told them that we should be strong and we should strengthen our technological system. You don't know when the need arises. And it happened on 20th March, but we had our experiments and experiences of Zoom and all other apps in the first week of March. We made the things happen. After 2.5 months of experience of online education, on Zoom meetings, on webinars, this and that, I'm of the firm opinion that these things cannot replace at all the chalk and talk methodology of the teacher. Kuch bhi aa jaye, anything may enter, because when we talk of the quality of education, the students in our institutions, they do not come simply to cover the syllabi of mathematics or to learn the fundamentals of accounting or to know the formulae of chemistry or physics or something else. They don't come for such things. If that would have been the case, there would not have been any need of the colleges, schools, and universities. They are basically the temples of overall learning. And when we talk of the education, education does not mean imparting only the bookish education or something academics. I think most of you will agree with me. In most of the subjects, the syllabus of the students can be covered within 15 lectures. And vast majority of the students, they prepare for their examination in the vacation we have before the examination. And most of the students who just prepare for 15 days continuously, they are able to get 60%, 70%, 80%. But when the students come to college, they come for their overall development, which we call of harmonious development, which we call of the holistic development, which we say कि जब वो कॉलेज में आते हैं तो बंदे बनने आते हैं. But what is happening to our education system? What is happening to our education system? हमारे education system ने इंसान बनाने, to produce human beings, they have stopped. हमारा education system दिनों दिन क्या कर रहा है? It has been stopping the people to develop and groom them into the best kind of citizens. Our system have stopped developing them to be the very, very responsible citizens, to be socially aware. That is eliminating. That's why we see a great indiscipline in the society. मैं 3 चीजें मानता हूं कि सोसाइटी में किसी भी बच्चे के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए there are 3 institutions. One is the institution of the parents, second is the institution of the teachers, and third is the institution of the preachers. I'm sorry to say, all the 3 institutions
in the present scenario and the present system have not been doing as they are supposed to do. Reasons are multifarious. बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कतें हैं. The system has compelled us to be data compilers more, teachers less. मैं कभी कभी सोचता हूं, हमारे पास डेटा की रिक्वेस्ट आती है, send us the number of students who have visited the SWAM, send us the number of students who have seen the TV channel 32, 42, that channel, this channel, send us the data, how many steps have you taken every day? अरे भाई, हम डेटा कलेक्टर तो है ही नहीं थे. It was not our duty at all. The teachers were supposed to be the personality makers. स्वामी विवेकानंद जी ने एक दफा कहा था कि टीचर कौन है? Who is the real teacher? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि रियल टीचर वो है who reaches to the heart of the students. He listens to with the ear of the student. He sees with the eyes of the student, and ultimately lives in a manner that it touches the soul, it touches the heart of the student. क्या हमारे पास ऐसा समय मिल रहा है? Are we doing that? कभी कभी हमको ये मालूम पड़ता है कि अगर हमारी क्लास में कोई विद्यार्थी और विद्यार्थन पिछले 25 दिन से नहीं आया, अचंचेत वो 26 डे में आ जाता है, हम सोचते हैं क्या हुआ बेटा, आपके मम्मा ठीक हैं, आपके पापा ठीक हैं, आपके घर में कोई समस्या तो नहीं, आप अगर इतनी गरीबी में है, आपका काम काज कैसे चल रहा है? Do we ever think of such things? Or do we ever have time to go for such things? हमारी 4 क्लासेस, उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कोई दिन ऐसा होता हो जब डेटा ना फिल करना होता. Many people of the institution, they are just occupied with sending one or the other, second, third, fourth. Every day we are reporting. I have been to these processes regularly. I have been to many institutions. I have been to regularly to that IQAC, quality assurance cell. Sometimes what we are doing, we have lost in the mere formalities instead of focusing on the real good. एक बात दोस्तों याद रखो, मैं फर्म बिलीवर हूं, हिंदुस्तान से अच्छा सिस्टम एजुकेशन का दुनिया में कहीं नहीं था. बट हिंदुस्तान ने क्या किया? वी हैड इंपोर्टेड सर्टेन रेडीमेड मॉडल्स and incorporated in our education system. अरे भाई, we have to see to the location. एक आदमी एक गांव में इंस्टीट्यूशन उसने स्थापित की है, गांव के लोग उसमें पढ़ने आ रहे हैं. इट्स एनफ दैट गांव के लोग पढ़ने आ गए हैं. गांव के लोगों का कैसे मुकाबला करेंगे कि उसका IQAC मुंबई के कॉलेज जैसा हो, सेंट स्टीफन कॉलेज जैसा हो, एक गांव में, छोटे शहर में, छोटे कस्बों में. हाउ कैन वी थिंक ऑफ? But the parameters of IQAC are same. How are they pursuing? हमारा तो अभी तक we got independence in 47, 73 years after independence. अभी तो हमारे बहुत से लोगों की बेसिक नेसेसिटीज नहीं पूरी हुई. हमारे सिस्टम में तो अभी तक एजुकेशन का जो बेसिक मंतव्य था, the first and foremost of objective of education was not to impart the degrees. The first and foremost objective of education was to make the students, the youngsters of the country, socially responsible, morally upright. क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा. अगर ऐसा होता, अगर हमारा यूथ सही तरीके से एजुकेट हो जाता, तो हमारी सोसाइटी में ऐसे रेप ना होते, हमारी सोसाइटी में लड़कियां बसों में, गांव में रातों को जाने को ना डरती, हमारे लड़के नशे की और में उनके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना घबराते कि दिस इज हैपनिंग. एजुकेशन का तो ये मंतव्य था. एजुकेशन का मंतव्य क्या हो गया? जब हमने डिग्रीज को अटैच कर दिया, काहे के साथ? एम्प्लॉयमेंट. 80% होंगे नंबर, एडमिशन मिलेगी. 90% में 95% के चक्कर में सभी लोग उलझ गए. I have the experience of the best institutions of the world. I have been to London School of Economics. My daughter got education from there.
हाउ कैन वी compete? उसकी क्लास में 80 लोग थे, वो 80 लोगों में से कम 70 लोग बहुत अच्छे घरों में थे, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। नंबर 2, अच्छे कंट्रीज में थे, 97% उन लोगों के मार्क्स थे। उनको तो आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं, बात चल जाएगी, वो तो अवेयर है, बात चल रही। हमारे पास जो स्टफ है वो क्या है? वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। हमारे पास 90% स्टफ वो है जिनको हमें ए से लेकर जेड तक हर डिटेल देनी पड़ेगी। We cannot follow the methods of teaching pedagogy as are given in the net. I have been going through a news item in the Times of India. Even Delhi University has shown its inability show की उन्होंने कि हमारे 85% लोग कह रहे हैं we are not comfortable enough to go for online exams through internet or through anything. I conducted in my institutions, I had good data, but again, my conclusion is you cannot go through the, okay, for certain competitive examination, online questions, it is okay, fine, fit and fantastic. But उससे भी क्या हो रहा है? जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी की हम बात करते हैं, ये क्यों हो रहा है कि आईआईटी मुंबई में पढ़ने वाला बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट होके डिप्रेशन में जाके सुसाइड कमिट कर रहा है? कहीं हमने सोचा है क्यों? कहीं हमने सोचा है कि ये क्वालिटी एजुकेशन कहीं हमें प्रेशर में तो नहीं डाल रही? कहीं हमने सोचा है कि ये क्वालिटी एजुकेशन हमें काबिल बना रही है कि हम एंटरप्रेन्योर बन सके? कहीं ये काबिल बना रही है कि हम गांव में जाकर, हमारे खेतों में जाकर खुद खेती करते हुए अच्छी गेहूं पैदा कर सके? Not at all. Not at all. I'm running the BSc Agriculture course. The syllabus of BSc Agriculture course, as designed by many of the universities, is not relevant for a poor farmer to follow the practices in his field. नहीं है। एग्रीकल्चर चल रही है। कहीं देश में अभी तक किसी ने सोचा है कि एग्रीकल्चर की अकाउंटिंग की कोई बात होनी चाहिए? हमारे फार्मर के पास तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हमारा फार्मर तो ये जानता ही नहीं कि मैंने ट्रैक्टर लिया, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगी, मेरी लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मुझे ये भी स्पेंड करना पड़ेगा। अगर हम एजुकेशन की क्वालिटी की इंप्रूव करने की बात करते हैं तो एजुकेशन शुड बी ऑल इंक्लूसिव। नंबर 2, the same education model cannot be applied all over the country. नहीं किया जा सकता भाई, किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। The students who are getting education in Sri Ram College of Commerce, 97-98% people are going, वो जाते हैं। और मैं बात बताऊं, उनमें से बहुत से स्टूडेंट घूमते फिरते हैं, एग्जाम हो जाते हैं, बच्चे अच्छे हैं, पढ़ लेते हैं, 5 दिन में नंबर ले लिए और कंपनियों ने उनकी प्लेसमेंट कर दी। ये जो पैकेज सिस्टम कॉर्पोरेट ने डाला ना, इस पैकेज सिस्टम ने फ्रस्ट्रेशन लेवल को और बढ़ा दिया। हमारे जैसे कॉलेजेस के जो गांव के हैं, सेमी अर्बन हैं, उन जैसे कॉलेजेस के बच्चों के मन में क्या आने लगा? उनसे बात कीजिए, अरे भाई आपने बीकॉम कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, आपको एक जॉब मिल रही है, सर कितने में मिल रही है? 15,000 रुपए महीने में, 50,000 सर, ओनली 15,000। अरे भाई, what are you expecting? You have simply passed graduation. It's more than enough that you should start your career. नहीं बन रही बात। हमारी एजुकेशन हमें सेल्फ रिलायंट बनाने में असफल है। एक एमकॉम किया व्यक्ति, मैं दावे से आख सकता हूं, एक एमकॉम किया व्यक्ति हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी का, देश की, एक एमकॉम किया व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि वो अपनी दुकान पे जाकर अपने वही खाते तैयार कर सके। दिस इज द प्लाइट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। गो टू द सिलेबस, चेक क्या पढ़ाया जा रहा है। फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बढ़ा दिया, ओके, अरे भाई इसकी तो बहुत कम लोगों को लोड है। हमने कैसे सिखाया? हमारे बच्चे लोग कैसे जाकर कंप्यूटर में अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज डाल सकते हैं? नहीं सिखलाया हमने उनको नहीं सिखलाया। आप अच्छी हिंदी, पंजाबी और ऐसी कम्युनिकेशन करके गांव में जाकर आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, हमने नहीं सिखाया। हमने तो फिलिप कॉटलर पढ़ाना शुरू कर दिया उनको मार्केटिंग का। फिलिप कॉटलर कहीं नहीं चलेगा, हिंदुस्तान की किसी गांव की मार्केट में फिलिप कॉटलर नहीं चलेगा। बट जो किताब बोली जाती है सब बड़े बड़े कॉलेजेस में रिकमेंड करनी पड़ती है, बिकॉज नैक भी पूछती है और लोग भी पूछते हैं,
तो अगर मेरे से भी आकर कोई बात करेगा, मेरी भी लाइब्रेरी में कॉटलर की है और ऐसी और कुछ बुक्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, वो भी ऐसी हैं, वो पूछेंगे कौन सी किताबें हैं सर? सर कॉटलर की 25 किताबें हैं, नया एडिशन है, या बहुत अच्छा, क्या बात है, तो आपके कॉलेज में हम कॉटलर पढ़ा रहे हैं। एंड कॉटलर इज ऑफ नो यूज फॉर आवर स्टूडेंट्स। Education should be area specific, it should be location specific, it should be geographical specific. हमने नया मॉडल एक और शुरू किया, मैंने भी किया, बीवॉक का, वोकेशनल कोर्सेज। किसी को डीडीयू मिल गया, किसी ने बीवॉक ये शुरू कर ली, किसी ने बीवॉक यो शुरू कर ली। तो क्या होने लगा बीवॉक में? स्किल सेक्टर्स बन गए। यू नो हु आर द स्किल सेक्टर पीपल? Vast majority of the skill sector people, they are the private business people given contracts. And when they come to the institutions. मेरे पास एक कोर्स है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी कौन कर रहा है? ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी वो गांव के साधारण बच्चे कर रहे हैं जिनके पास और कोई सुविधा नहीं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, उनको हिंदी भी नहीं आती। दे आर इन ए पोजीशन टू स्पीक पंजाबी एंड दैट पंजाबी टू द गांव पंजाबी, विलेज पंजाबी, नॉट पंजाबी ऑफ दैट लेवल विच द लिटरेरी पीपल यूज टू राइट। तो नाउ अब क्या होगा? वो आए, उन्होंने कंप्यूटर पे क्वेश्चन डाले हुए हैं इंग्लिश में, अब कुछ ने हिंदी में कर दिए। सर अगर आपके बच्चों ने स्किल सेक्टर का एग्जाम पास करना है तो दे आर टू अपीयर इन द कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने यूजीसी को भी लिखा, मैं बड़े लोगों को मीटिंग में बोला, अरे भाई हम लिख रहे हैं कि these skill courses are meant for the local people. Suppose I have started one course, I have started that course keeping in view the locality of my area, कि मेरे एरिया में लोगों की क्या जरूरत है। मैंने कोर्स शुरू कर लिया। मेरा स्किल सेक्टर मुंबई में बैठा है, उससे साथ टाई अप हुआ है, उसने 2 लोग आइडेंटिफाई किए, मुझसे 800 रुपए पर स्टूडेंट लिए। अगर तो कोई अच्छा आ गया तो वो मेरे 800 रुपए जो उन्होंने लिए है उसका अफजाना मुझे देकर मेरे बच्चों को सर्टिफिकेट दे जाएगा। स्किल नहीं आएगी, सर्टिफिकेट दे जाएगा। अगर कोई सख्त आ गया, वो बोलेगा तो ये एग्जाम नहीं पास है, हम तो 10 को नहीं क्लियर करके जाएंगे, वो सेकंड टाइम अपीयर हुआ 800 और दे दीजिए। क्या फायदा? अगर हम क्वालिटी चाहते हैं, दैट द एजुकेशन शुड बी क्वालिटेटिव, माय डियर फ्रेंड्स, इट शुड बी रियलिस्टिक, it should be as per the needs, it should make them competent, capable to earn their livelihood. उनको इंसान बनाने के साथ साथ एजुकेशन वो होनी चाहिए जो उनको खाना दे सके। ये स्टूडेंट्स में अनरेस्ट क्यों है? क्यों बहुत से लोग बाहर जाने की दौड़ में लगे हुए हैं? मेरा पंजाब तो खाली हो रहा है, हरियाणा भी खाली हो रहा है, आगे आगे और भी हो जाएगा। क्यों लोग बाहर लगे हुए हैं? मैंने एक वेबिनार अटेंड किया, सब ये ऑनलाइन, जब ये कोविड का समय चल रहा था, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। मुझे पूछा सर आप क्या सोचते हैं? मैंने बोला सर मैं ये सोच रहा हूँ, ये सब छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपके 5 वेबिनार्स ऑनलाइन के आप करना चाहते हैं, स्टॉप इट, आई डोंट नीड इट। देन कहते व्हाट यू नीड? मैं कहा मैं ये चाहता हूँ मेरे वो स्टूडेंट्स जो इस समय फाइनल ईयर में हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर पास करना है, उनके पास 6 महीने की कंप्लीट अनसर्टेनिटी है। आप ये बोलें इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग एल्स, आप सरकार के लोग हैं, आप ये बोलें कि जो स्टूडेंट्स ने 60% में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर ली है, जितना समय आने वाले 6 महीने 8 महीने में उनको किसी भी जॉब के लिए वो नहीं जा सकेंगे, उतना समय हम 600 रुपए पर मंथ, मैं बहुत स्मॉल अमाउंट बोल रहा हूँ, 600 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ, उन स्टूडेंट्स को हम अलाउंस देंगे, रोटी रोजी चल सके, फ्रस्ट्रेशन कम हो सके। उनकी फ्रस्ट्रेशन मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर देने से कम नहीं होगी। मैं टेम्परेरी उनको रिलीफ दे सकता हूं। आई हैव बीन एड्रेसिंग माय स्टूडेंट्स रेगुलरली, आई एम वेरी मच इंटरेक्टिव विद माय स्टूडेंट्स। मैंने उनके कई लाइव सेशन मेरे यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया है, सिरजना टीवी यूट्यूब पे है मेरा चैनल। मैं हर रोज कंटिन्यूसली लिखता हूँ, डेली, ये मेरा धर्म है। पिछले 8 साल से रेगुलरली कुछ लिख रहा हूँ, कुछ पोस्ट कर रहा हूँ।
बट स्टिल आई बिलीव वो टेम्परेरी रिलीफ तो मेरे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट से। उनकी स्ट्रेस रिलीफ तो तब होगी जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि हमारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होते साथ क्या हम खाना खा सकेंगे। एजुकेशन वो चाहिए जो उनको खाना खाने के योग बनाती हो, अदरवाइज इस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। पहला मंत्र उन लोगों को इंसान बनाए। हम फेल हो रहे हैं, बड़ी चिंता होती है। The episodes of म्यूट कर are increasing every day episode। आप लोग भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूं। मैं बहुत दलेर टीचर था। आज से 20 साल पहले 15 साल पहले मैं स्टूडेंट्स का गला पकड़कर उन्हें खींच लाता था। अब मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है। यू डोंट नो कौन सा फ्रस्ट्रेटेड विद्यार्थी आपके आगे छुरा खोप जाए। इट मे हैपन। और स्टूडेंट का कसूर नहीं, वो फ्रस्ट्रेट है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डिग्रियां दे रहा हूं, ये एजुकेशन सिस्टम डिग्रीज दे रहा है। वी आर प्रोड्यूसिंग बीएड ग्रेजुएट्स, अनेका बीएड ग्रेजुएट्स पास कर दिए। मुझे कॉलेज में एक माली की जरूरत हो तो माली मुझे महंगा मिल रहा है, टीचर मुझे सस्ता मिल रहा है। क्यों? कैसे सुधरेगा एजुकेशन सिस्टम? टीचर्स आर द लास्ट प्रायोरिटी इन एवरी सेक्टर। जिस देश में टीचर लास्ट प्रायोरिटी होगा तो समस्याएं पड़ेंगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एडहॉक टीचर्स से काम चलने लगा है, तो ये ऑनलाइन में और क्या हो जाएगा? जब ऑनलाइन बढ़ जाएगा, एक जूम ऐप लो, 12,000 रुपए पर मंथ में एक होस्ट मिल जाएगा, 500 आदमी मिल जाएगा, 300-400 की एक क्लास एक जूम ऐप से एक टीचर से करवाओ, फिनिश, गुड। और ओपन बुक टेस्ट कर लीजिए, किताब में जैसे होता है 24 घंटे में लिखकर वो क्वेश्चन का आंसर भेज देगा, तो बात बन जाएगी। एडहॉक टीचर्स की कोई जरूरत नहीं रहेगी, तो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। कहने को तो बहुत अच्छी हो जाएगी डेटा के हमारे इतने टीचर ऑनलाइन हो गए हैं, दे हैव बिकम कॉम्पिटेंट, दे हैव बिकम टेक्नोलॉजिकल सेवी, दे हैव बिकम द एक्सपर्ट्स एंड दे हैव बिकम अप टू डेट एंड मार्केट रेलेवेंट टुडे। मैंने एक दफा एक आर्टिकल लिखा था, एजुकेशन में कमर्शियलाइजेशन नहीं चलेगी भैया। एजुकेशन में ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के नहीं चलेंगे। कई लोग आते हैं ना, लेक्चर देते हैं, और मेरे पास कुछ प्राइवेट लोग आते हैं, डाटा चाहिए सर। मैं कहा जी मैं डाटा नहीं देता किसी को भी। सर हमने इनके करियर की गाइडेंस करनी है। मैं कहा अगर इनके करियर की गाइडेंस मैं नहीं ना कर सका तो आप नहीं कर सकेंगे। आपको डाटा चाहिए किसी को आईलेट्स के लिए लेकर जाने के लिए, और कहीं को और किसी इंस्टीट्यूट में खींचने के लिए। क्या करेंगे इसके अलावा आपकी इनकी करियर गाइडेंस? यू कैन नॉट डू इट ऑल। जरूरत क्या है? एजुकेशन अगर हमने इम्प्रूव करनी है, एजुकेशन हमने इम्प्रूव करनी है तो 3 चीजें हम कर लीजिए। नंबर 1, सबसे पहला, मेरे देश के जो टीचर्स हैं इनका रेस्पेक्ट, इनका ऑनर, इनकी डिग्निटी, इनकी कॉम्पिटेंस बढ़ाते हुए दे शुड बी द बेस्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। दे शुड बी एट पार विद द बेस्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। मैंने जो पहले बात बोली थी ना, एक ये लोग हैं जो बंदे बनाते हैं, बाकी लोग पुर्जे बनाते हैं। पर अगर टीचर ऐसे होंगे जो आज के हालात में चल रहा है तो पुर्जे ही बनेंगे। स्टूडेंट को लोग क्लाइंट बोलने लग पड़े हैं, कस्टमर बोलने लग पड़े हैं। अरे भाई हिंदुस्तान की संस्कृति को जानिए, वहां गुरु शिष्य था। हिंदुस्तान की संस्कृति में गुरु शिष्य था। जब तक टीचर गुरु नहीं होगा, विद्यार्थी शिष्य नहीं होगा, बात नहीं बनने वाली। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, सिर्जना टीवी, SIRJANA TV। मैं हर रोज, मैं उन लोगों में से हूं, मैं आप अपने हौमे की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से हूं जो हर रोज चिंतित हूं मेरे विद्यार्थियों के लिए, हर रोज उनकी सोचता हूं। बट निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हालात चल रहे हैं उस हालात में अगर हम एजुकेशन को सुधारना चाहते हैं तो नंबर 1, टीचर्स अच्छे पैदा कीजिए। अच्छे टीचर्स अच्छे विद्यार्थी पैदा करेंगे। ये पैराडाइम अब भी उतना ही सही है जो आज से 300, 400, 500 साल पहले था। एक चंद्रमा जैसा बतलाया है गुरु नानक देव जी ने, सूरज जैसा बतलाया है टीचर को।
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ if there are 100 moons, 1000 suns may rise, but if we don't have a teacher, if we don't have a guru, there will be complete darkness in the system. अंधेरा रहेगा सारे सिस्टम में। नंबर 2, एजुकेशन वो चाहिए जो विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाए। सिलेबस हो जाएंगे, मुझे सिलेबस की चिंता कभी नहीं हुई। सिलेबस हो जाएंगे। एजुकेशन वो चाहिए जो आदमी को, स्टूडेंट को अच्छा इंसान बनाए। थर्डली, यस, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि एजुकेशन उसको खाना खाने के योग्य भी बनाए, तब बात बनेगी। नहीं तो ठीक है, लगे हुए हैं, हारने वाले तो हम नहीं हैं। आई एम नॉट दैट पर्सन, आई कैन बी डिस्ट्रॉयड बट आई कैन नेवर बी डिफीटेड। मिनिमाइज हो जा रहा है, हराया। सो हम लगे रहें। आप जो लोग इस समय भी इतने जुड़े हैं, ये एफडीपी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मैंने जो चेहरे मोहरे देखे हैं बहुत से, किसी को कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि उनका इंक्रीमेंट फंसा हुआ है इसके साथ। वॉलंटियरली जुड़े लोग लगते हैं। तो जब वॉलंटियरली लोग जुड़ते हैं ना कहीं बात करने, संवाद, हिंदुस्तान की संस्कृति, एक मैं लास्ट में, क्योंकि मुझे 30 मिनट दिए गए थे, मैं 7 मिनट ज्यादा ले गया, तो एक बात मैं और बतलाता हूं। हिंदुस्तान की संस्कृति संवाद की संस्कृति है, डायलॉग की, विवाद की नहीं, डिबेट की नहीं है, डायलॉग की है। तो हमने डायलॉग स्थापित करना है। हम अच्छा डायलॉग रचाएं तो आगे आगे बात बनेगी। लगे रहें, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे तो मंजिल तो अवश्य मिलेगी। निराशा नहीं होनी चाहिए, सॉल्यूशंस होने चाहिए। सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, हम ऐसे काम कीजिए, उससे बात बन जाएगी। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्रोजेक्टर कॉलेज में 5 लगे हैं या 25 लगे हैं। अगर कॉलेज में 5 प्रोजेक्टर की बजाय 25 टीचर अच्छे हैं, that is more important than anything else. I still believe it. There cannot be any substitute of the teacher. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, very well said. We will try our best to remain in the soul of the students by having them personal interaction and solving their problems, and we will always try to make them self-reliant so that they can earn their bread and live a livelihood, better livelihood. थैंक यू जी। कहीं मौका मिला तो आपकी संस्था में आएंगे, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैडम जैन जी ने, ये हमारे पास एक इंस्पेक्शन पे आए थे तो हम मिले, वहां से हमारी जान पहचान हुई, तो चल रहा है, अच्छा, मिलते रहेंगे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। प्रियंका मैम हमारे गेस्ट, और राजेश जैन जी भी आ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, जुड़ चुके हैं राजेश जैन जी भी और गेस्ट भी। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे ही हमें अपना टाइम दिया, और साथ साथ ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि इस सिस्टम को किस चीज की जरूरत है। इस सिस्टम को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बेस्ट सिस्टम्स की जरूरत नहीं है, इस सिस्टम को जरूरत है अच्छे और गुड टीचर्स की। और हमारा एफडीपी प्रोग्राम इसी उद्देश्य से रखा गया है कि हम कैसे वर्ल्ड क्लास टीचर्स बनाएं, ऐसी क्या गुणवत्ता उनके अंदर लाएं जिससे कि वो वर्ल्ड क्लास टीचर्स बने, एक अच्छे टीचर्स बने, अच्छे टीचर बने जो कि कलपुर्जे ना बनाकर ह्यूमन बीइंग्स बनाएं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। तो बहुत सुंदर वर्ड्स में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ टीचर्स। सारी हमारे ऊपर ही है, सारी टीचर्स के ऊपर है कि टीचर्स को कैसे अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड करना है। सेकेंडली मैम अनम्यूट करिए मैम, माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। साथ साथ ही उन्होंने अपना ये बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से हमें कौन सी एजुकेशन देनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्हें
ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या सिखाया जाए, बच्चों को स्किल को सिखाया जाए, इंस्टेड ऑफ कि उन्हें टेक्स्ट पढ़ाई जा रही हैं, उन्हें पुराने जो सिलेबस हैं वही पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे लगता है आज की जरूरत ये है कि उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए और उनको कंपल्सरीली उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में एक गार्डनर मिलना मुश्किल है, टीचर मिलना आसान है, तो कितनी भयावह स्थिति है कि जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हमें एक प्लम्बर चाहिए या हमें एक गार्डनर चाहिए या हमें एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो इन चीजों के लिए हम परेशान होते हैं क्योंकि ये लोग बहुत अब महंगे हो गए हैं, क्योंकि हमारे इन लोगों की कमी हो गई है, क्योंकि लोग ये सीख ही नहीं रहे हैं। एवरीबडी इज इनटू द एजुकेशन एंड एवरीबडी इज इनटू द जॉब। कोई चाहता ही नहीं है इस तरह के काम करना, तो जबकि ये काम हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहे और आगे भी रहेंगे। और अपनी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी श्री राजेश जैन जी भी हमारे साथ आ गए हैं। आज का कंक्लूडिंग सेशन है, तो कुछ कहना चाहते हैं तो हम उनकी बात जरूर सुनना चाहेंगे, प्लीज। मैडम, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, देखिए 3 टॉपिक है जी। आपने एक तो कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी। देखिए इसमें है ना कुछ एक प्रॉब्लम है कि जो इस वक्त की पीढ़ी है, अभी जो सर समझा रहे थे ना, तो उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा था उम्र वाइज, आपका भी है, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है ना, वो उसके अंदर पेशेंस कम है जी। वो हर चीज में फास्ट है। यही उसकी अच्छाई है, यही उसकी बुराई है जी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा एक विराम चाहिए कि हम उनकी सुने भी और वो हमारी भी सुने। तो ये जो पेशेंस का गेम है, इसमें हमारी नई पीढ़ी कमजोर बैठती है। अब इसका रीजन क्या है ये मुझे नहीं पता कि, लेकिन अब ऐसे में हमारी भूमिका क्या है? अगर हम भी लो पेशेंस हो जाएंगे तो सेम कंडीशन हो जाएगी। तो पहली बात तो मैं यही मानता हूँ कि जो मेरा प्रोफेसर है वो उन्हें कैसे ट्रीट करे, इस पे उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल प्रोग्राम नेट पे पढ़ने चाहिए। अब जैसे मैंने एक दिन भी कही थी सेशन में, अब हमारे कॉलेज की एक प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश कमजोर है। तो आप मानो ना मानो उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कमजोर बैठता है। देखिए कैसे हम पीयू से पढ़े हैं, हमें कुछ आता है या नहीं आता, पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। तो उसमें कोई ना कोई मेरे प्रोफेसर की भी भूमिका होगी ना। तो हमारी एक भूमिका ये भी है कि हम उन्हें किस तरह से उनका मोरल बूस्ट करें, उन्हें समझाएं। इरिटेशन भी एक रीजन है ना, इरिटेशन क्यों है, हमें जड़ तो देखनी पड़ेगी ना, इरिटेशन की जड़ क्या है। मेरा स्टूडेंट मेरे से इरिटेट है, हम उसकी सुनते ही नहीं, हम क्या कहते हैं चुपचाप हमारी सुन ले, तो मैडम उसके अंदर तो ब्लास्ट हो गई हो। एक बात। दूसरी बात, कुछ टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि हमें अपने हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस नई पौध के लिए। ठीक है, उसमें 1000 कमियां हैं, तो कमी तो मेरे अंदर भी तो होगी। मैं आपके लेवल पे बात करता हूँ, एक आधी कमी तो आप में भी होगी। मैं अगर आपका मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट हूँ तो कमी तो मेरे अंदर भी है ना, आपको लगता भी होगा। अब मान लो हम आपकी सुने ही ना, तो आपके हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, आप हमारा ही तो हिस्सा हो। बिल्कुल। तो एक तो ये, लेकिन अभी आपने एक बात कही कि हमारे पास प्लम्बर नहीं है। पैसे की बात हो रही है। देखो मैडम, हम भी इंडस्ट्री चलाते हैं। अभी हम लोग बड़ी तेजी से कह रहे हैं चाइना की इंडस्ट्री हमारे पास आएगी जी। तो वो जो चीजें हैं, जो चाइना की चीजें हमारे पास आएंगी, उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने कभी कोई जापान का सामान खरीदा है और घर लाके चलाया, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो सही चलाना हो? तो हमारे को सबसे पहले ये देखना है सबसे पहले हमें ये देखना है मैडम कि हम जब जापानी सामान लाते हैं तो किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं हुआ कि वो घर आके नहीं चला।
उसके अंदर उनकी मेंटलिटी की क्वालिटी कंट्रोल एक उनकी मेंटलिटी में बसा हुआ है। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल के बारे में सीखना है। क्वालिटी तो मेरे को अपने स्टूडेंट की भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। प्लम्बिंग का काम मैं जब करूं तो मैं उसमें कोई भी काम ऐसा ना करूं जो चालू हो, जो चलता हुआ हो। मैं उसके ऊपर रिसर्च करूं कि मैं बेस्ट वे कैसे लूं। जब मैं पढ़ा लिखा हूंगा, जब मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि मुझे क्वालिटी कैसे कंट्रोल करनी है, तो प्लम्बिंग आप ऐसे देखिए ना, कृषि के अंदर हम कितने पिछड़े हुए, जबकि हमारा देश तो कृषि प्रधान है और कृषि के उससे संबंधित कितने लोग हैं। क्यों वहां पर इजराइल के अंदर इतने बड़े इंवेंशन हो गए? क्यों ब्राजील में 21% रिकवरी मिल रही है गन्ने की और इंडिया में आज 13% है, पहले 8% थी। हमारे को क्वालिटी के संबंध में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर थोपना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहली शुरुआत अपने यहाँ से करनी पड़ेगी। जब मैं इस बात के ऊपर दिमाग लगाऊंगा कि मुझे क्वालिटी में क्या करना है, तब क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो एक आदमी झाड़ू लगाता है तो एक बड़ी अच्छी लगाता है, एक कहते हैं आप बेकार लगाता है, तो क्वालिटी तो वहां पर भी आ गई। क्वालिटी तो वहां पर भी आ गई मैडम। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये जितनी भी चीजें हैं, अब आप अपने प्रोफेसर से बात कर लें, अपने स्टूडेंट की बात कर लें। आपको इस बात में विशेष दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, मोटिवेशंस पैदा करने पड़ेंगे। प्रोफेसर में भी अपने एसोसिएट प्रोफेसर को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि भैया आप ये काम कर सकते हो। अपने स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा कि आप ये काम कर सकते हो। मैं ये बात बड़ी आराम से फील करता हूँ जब मैं अपने कॉलेज की लड़कियों से, अन्यथा तो मैं बात नहीं करता, जब कभी करता हूँ तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। मैडम कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा कि यू आर जीनियस, कि आप जीनियस हो। हमारे में से ही धीरू भाई अंबानी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, बिल गेट्स कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। देखिए गरीब पैदा होने में मैं कुछ नहीं कर सकता था, पर गरीब मरने में मेरा भी दोष है। वेरी ट्रू, वेरी गुड। तो इसलिए ये बात आपको अपनी क्वालिटी के अंदर सोचना पड़ेगा। हमें मोटिवेशन के लिए क्लास लगानी चाहिए। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये जो 4 दिन का इतने दिन का सेशन है आपका, मैं आप लोगों को सुन के बहुत नई मैंने बातें सोची है। मालपानी जी से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, उनसे मेरे को बहुत बातें पता लगी। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि कुछ चीजें हमारे को क्वालिटी कंट्रोल के बारे में टॉप टू बॉटम सोचना पड़ेगा। देखिए हमारे पास बहुत अमीर वर्ग के बच्चे नहीं है, लेकिन क्या गरीब वर्ग के बच्चे बड़े आदमी नहीं बने? कितने नेता हमारे, कितने बड़े साइंटिस्ट क्या थे हमारे कलाम साहब। मैडम शुरुआत अपने यहाँ से करनी है, मुझको स्वयं को करनी है। जब आप समझो मुझे, मैं आपके मैनेजमेंट में हूं, मुझे लगता है सारा दोष ही मेरा है, आप लोगों का दोष नहीं है। मेरी टीम में जो डिफेक्ट है वो मेरे कारण है, मैंने उन पे कम ध्यान दिया। जब अभी ये जब हमारा खत्म हो जाएगा और मैं आप लोगों की मीटिंग करूंगा, तो अब क्या तो अपनी गलतियां ढूंढूंगा कि कॉलेज को चलाने में हमारी गलतियां क्या क्या है। मैं इसमें बिल्कुल आपको नहीं कह सकता कि आपकी गलतियां। मैं आपसे भी निवेदन यही करूंगा, अपने सारे जितना मेरा विद्यालय परिवार है, मेरे कॉलेज परिवार है, कि हमें अपना कॉन्फिडेंस अपना भी कुछ करना है, बच्चों का भी करना है, और जो गलती हो रही है वो आगे हमसे कोई कहे तो मैं सुनने डालनी पड़ेगी। अब मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। अभी आपके साथ बहुत सारे लोग हैं और मेरे को जितना था मैंने आपको कहा। अभी अपनी बात शुरुआत अपने से ही करेंगे, कोई और से नहीं करेंगे। पहला काम एज ए प्रेसिडेंट अपनी गलती को मैं अनुभव करूंगा, फिर मैं आपसे मीटिंग करूंगा, फिर अपने एसोसिएट प्रोफेसर से मीटिंग करूंगा। अब की बार ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हम भाननेबाजी नहीं करेंगे, कोई भाननेबाजी नहीं करेंगे, ये नहीं था। अब शुरुआत अपने यहाँ से करेंगे। अच्छा मैं थैंक्स बोल के इसे बंद करता हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश जैन जी। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छी बात कही और इनको भी अब सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका मिल रहा है इस एफडीपी के थ्रू
कि ये सेल्फ इवेलुएट करेंगे कि सिस्टम में क्या क्या कमी है, और फिर हम लोग भी बदलाव लाएंगे, थोड़ा चेंजेस लाएंगे। और इसके साथ साथ ही प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत क्या आप सुन रहे हैं सर मुझे? हाँ सुन रहा हूँ मैडम। हाँ जी, आई एम गेटिंग यू। ओके ओके, सो बिल्कुल, तो वी आर रियली वेरी ऑब्लाइज्ड टू हैव यू विद अस। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बारीकी से सिस्टम की खूबियां और खामियां बताई। और सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि हम टीचर्स को ही अपना अन्वेषण करना होगा, और जब तक हम अपने अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं लाएंगे, जब तक हम अच्छे ह्यूमन बींग्स नहीं बना पाएंगे। तो हमें ह्यूमन बींग्स भी क्रिएट करने हैं, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ भी चलना है, और अपनी समाज को, अपने देश को भी आगे ले जाना है। तो इसके साथ साथ ही बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, और लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। बहुत जल्दी आपको हम अपने आप बुलाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे साथ दूसरी आपका भी है, आपने हमें एक मंच पे लाई। थैंक्स टू आपका भी है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं डॉक्टर संतोष जी को आमंत्रित करती हूँ। शी में इनवाइट दी अनदर गेस्ट। हाँ जी मैम, वे कनेक्ट हो रहे हैं, जो हो चुके हैं। वाइस चांसलर हैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के। हाँ जी मैम, कनेक्ट हो रहे हैं मैम। सर आई रिक्वेस्ट यू, आप ऑडियो के साथ कनेक्ट हो जाइए सर। सर ऑडियो के साथ कनेक्ट हो जाइए आप। सर कनेक्ट हो चुके हैं मैम। ओके। याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें, और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ठान है। प्रियंका मैम, आप इनवाइट करिए सर को। ओके, हैज शी जॉइंड? हैज ही जॉइंड? या हाँ जी मैम, ज्वाइन हो चुके हैं सर। ओके ओके। It gives me immense pleasure to welcome our guest, Professor M.R. Verma ji. He had his education in Bihar and at Allahabad University. In his 43 years of teaching career, he has served in 3 states. Presently, he is teaching in Gurukul Kangri University, Haridwar, where he joined as a professor in 1999. He has been head of department, Dean Faculty of Humanities, Dean Student Welfare, and also Controller of Examination at present. He has also officiated as a registrar and vice chancellor. He has to his credit 3 books and 35 research papers. I welcome you, sir, and it gives us an immense pleasure. Please impart your knowledge and enlighten our mind. Welcome, sir. मैम सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो ऑडियो के साथ उनके कुछ हो रहा है सर। या तो आप फोन कर दीजिए सर को कि वो विद ऑडियो कनेक्ट हो जाए हमारे साथ। मैं अभी करती हूँ। Today in our area there is electricity problem or there is a poor connections. हेलो हेलो सर, ऑडियो से कनेक्ट हो जाइए फिर आप। मैडम मुझे कह रही हो क्या? नहीं नहीं, अपने गेस्ट से कह रही हूँ। आपकी तो आवाज आ रही है, आप दिख भी रहे हैं। हमारे गेस्ट है एम.आर. वर्मा जी। हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी। आप जी ज्वाइन कीजिए, ऑडियो 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 को ज्वाइन कीजिए अपने उस पर, सिस्टम पर। रिसीव हो रहे हो क्या वो ज्वाइन, या चले गए? नहीं, ही इज ऑन द स्क्रीन। मुकेश रंजन वर्मा जी, बट ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है उनका। सर सर
सर एम आर वर्मा सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। तो अनम्यूट कैसे करेंगे आप? आपके पास सेल फोन है या लैपटॉप है? अच्छा संतोष, वो सेल फोन पे अनम्यूट कैसे करेंगे? मैम उसमें वो होता है, इसमें एक दिखाई, वो निशान है, एक साइन होगा मैम, इसका साइन होगा, साइन होगा ऑडियो का। मैम लेफ्ट साइड एक ऑप्शन होता है नीचे, उल्टे हाथ एक ऑप्शन है, माइक बना हुआ है नीचे। लेफ्ट साइड पे एक माइक बना हुआ आ रहा होगा, या हेडफोन का निशान होगा, हेलो, उसको क्लिक करना होगा। नहीं वो तो कर चुके वो हेडफोन को, केवल उन्हें माइक को अपने अनम्यूट करना है। हाँ एक बार फिर से कनेक्ट कर लीजिए और उस पे निशान बना होगा, उसको फिर प्रेस कर दीजिएगा। मैम माइक का निशान है, उसको माइक प्रेस का जो कर निशान है देंगे। उसको प्रेस कर दीजिए बस। वो ही इज कनेक्टिंग अगेन, वो दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ यस जी, वी कैन हाँ हियर जी यू। सर। हाँ आ रही है सर, आ रही है। गुड, दैट्स गुड। हेलो, हुकुम करें। हाँ बोलना शुरू करना है क्या? यस सर, पहले आपको वेलकम कर लेते हैं। कर ले जरूर करें। Yes. So I, on behalf of my management and my staff members, sir, I extend a very hearty welcome to you, and I hope that your address will be very, very beneficial to all the faculty members attending this FDP program organized by Jain Girls PG College, Muzaffarnagar. Sir, I have known you and you have visited our college, and you are such a simple and great personality, and I have felt the spirituality as well as the around you, and you have been so simple and so majestic, that I was really tuned in by your personality. Sir, I would like to welcome you once again to this program. Please, sir, start your address. Thank you. Good evening. Good evening. Good evening to all. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening. Thank you. Dr. Seema Jain said good words for me. I am thankful to her. I have known her to be a dynamic and efficient principal who would be an asset to any educational institution. And I'm especially thankful to her for inviting me to talk to you on this occasion. मेरे अपने 43 साल के टीचिंग करियर में मैंने शिक्षा में बदलाव होते देखा है, खास तौर से शिक्षा के उद्देश्य में और शिक्षक की भूमिका। लेकिन शिक्षा के परिदृश्य में जो बदलाव पिछले 3 महीनों से हम लोग देख रहे हैं, ये पिछले 50 सालों से मैंने नहीं देखा, न किसी और आज इसी बदलाव का नतीजा है कि हम इस वीडियो मीडियम से जुड़ रहे हैं, वरना मैं आपके सामने होता और आपसे फिजिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता, ये वर्चुअल शेयरिंग ना होती। तो बहुत कुछ बदला। हमें यह देखना है कि क्या बदला हायर एजुकेशन के लिहाज से, क्या रिटेन कर रखा है हमने, और क्या फ्यूचर की एक झांकी हम देख सकते हैं। फ्यूचर अनसर्टेन है, अभी हम जानते नहीं, लेकिन हम गेस कर सकते हैं, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। पहले तो हम ये देखें कि पिछले 1.5-2 महीनों में हम लोगों ने और आप लोगों ने अपनी सारी कक्षाएं ली ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कक्षाओं की जो कठिनाइयां हैं वो हम लोग शेयर करते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी यही हाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, BHU में, IITs में भी, जहाँ की उनको आदत है इन सब चीज़ों की, वहाँ भी वो 100% कनेक्ट ना हो पाए। और हमारे विद्यार्थी तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, पर्वत की ऊंचाइयों पर रहते हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत मुश्किल था
उनको ऑनलाइन पढ़ाना, और फिर भी हम लोगों ने कोशिश की और जहाँ तक हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे वो हम करते रहे। इस बीच यूजीसी ने एक पत्र लिखा सारे विश्वविद्यालयों को और उसमें ये कहा कि हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज एक कोविड-19 सेल का गठन करेगा जो बच्चों के प्रॉब्लम्स को डील करेगा। और आप लोगों के यहाँ भी होगा और हमारे यहाँ भी ये कोविड सेल है। आज ही हम लोगों ने उसकी मीटिंग की है और उस पर हम लोगों ने चर्चा की है कि परीक्षाएं कैसे होंगी। मैं अपने विश्वविद्यालय का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस भी हूँ, तो अब समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को कि क्या करें। ऑनलाइन परीक्षाएं पॉसिबल दिखाई नहीं दे रही थी, ऑफलाइन के लिए अभी रास्ता दिख नहीं रहा था। इसी उहापोह में हम लोग अभी जी रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बीच में घरों में रह के, बाध्य होके, सरकार के द्वारा बताए गए रास्तों पे चल के जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए या ऑनलाइन नॉलेज के एवेन्यूज टटोले, उसका एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस। मैं पर्सनली अगर अपनी बात कहूँ तो कभी मुझको यूट्यूब देखने का मौका नहीं लगा या किसी ऑनलाइन मीडियम को सुनने का, जानने का मौका नहीं लगा। कभी कभार हो जाता हो अलग बात है, लेकिन व्यवस्था कुछ इस ढंग की रही कि मैंने कभी देखा नहीं। अब इस समय इस पूरे लॉकडाउन के दौरान मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, एनपीटीईएल के लेक्चर सुने, दूसरे स्कॉलर्स के लेक्चर सुने, येल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स के, जो अभी कंटेम्पररी ऑथर्स हैं उनको सुना, जो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के टीचर्स हैं, वो इस नाम से लिटरेचर के टीचर हैं, वो इस नाम से परिचित होंगे। मैंने एडवर्ड सईद के इंटरव्यू सुने, मैंने जाक लकां को सुना, मैंने फूको के पर मटेरियल सुना, फूको के ब्रीफ स्पीचेस सुने। यह अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस जिसने एक टीचर के रूप में मेरे डायमेंशन में ऐड किया। और अगर आप लोगों ने, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी किया होगा, तो डेफिनेटली उसने आपके इस डायमेंशन को बढ़ाया। तो यह एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के अगर हम इसको देखें तो हम पाएंगे कि यह गेनफुल भी रहा है। ऐसा नहीं कि हमने इसमें गेन नहीं किया है। और सरकार की ओर से अगर आप देखें तो 2017 में यूजीसी के चेयरमैन ने एक पत्र लिखा था हम लोगों से और ये कहा था कि आप मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज। सीमा जी आवाज आ रही है मेरी? सीमा जी, एम आई ऑडिबल? यस, थैंक यू। तो आज की डेट में 25 लाख से ज्यादा लर्नर्स इस लाइन पे, और अभी रिसेंटली यूजीसी के सेक्रेटरी ने हम लोगों को एक पत्र लिखा सारी यूनिवर्सिटीज को कि आप उसकी परीक्षाओं का क्रेडिट लड़कों के अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो यह एक जो व्यवस्था बदल रही है ये अनफोर्सीन थी। कोविड ने उसको एक्सपेडाइट जरूर कर दिया, लेकिन इस दिशा में सरकार बढ़ रही। ऑनलाइन की बहुत से इनिशिएटिव्स मोदी जी की सरकार ने पहले से उठा रखे थे और इस दिशा में इसने एक्सपेडाइट कर दिया इंटायर प्रोसेस। तो आज के सीन में आप ये देख सकते हैं कि स्वयं के पोर्टल पे, मूक्स के पोर्टल पे, एनपीटीईएल के पोर्टल पे और तो और स्कूलों के लिए तो दूरदर्शन ने अलग अलग कक्षावार चैनल्स बना रखे। तो हम ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन टीचिंग का स्वरूप है यह रहने जा रहा है कोरोना के बाद, कोविड के बाद। आप शायद इससे फेमिलियर होंगे कि ऑक्सफोर्ड ने और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने अपने आने वाले सेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस अनाउंस कि हम क्लासेस वहां लेंगे। इधर इस बीच में सेमिनार बंद होने की हालत में वेबिनार का जो दौर चला है, आप सब लोगों ने उसके हिस्सा भी लिया होगा, लगातार डिपार्टमेंट्स वेबिनार। वह एक ऐसा बदलाव है जो हो रहा है। तो पहले तो हम इस बात को एक्सेप्ट करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रूप में कि जो 2019 की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में एक स्थायी बदलाव होगा और इस बदलाव के साथ हम अपने आप को कहां ले चल सकते हैं यह आकलन हम लोगों को करना। जहां तक इम्प्रूव करने की बात है तो इम्प्रूव करने का तो एक बहुत बड़ा संसार पड़ा है। कारण ये है कि जब हम वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं यूनिवर्सिटीज की
हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी उसमें जो दावा करती हैं कि हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और टीचिंग फैकल्टीज हैं, उनका भी नाम नहीं है। साउथ कोरिया है, हांगकांग है, चाइना है, इस जैसी छोटे छोटे देशों की, चाइना को तो छोटा नहीं कहेंगे, देशों की यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में लिस्टेड, हम लोग नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें यह आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हम कैसे इस व्यवस्था को सुधारें और कहाँ लेके चलें। तो पहले तो यह स्वीकार करें हम लोग, और इस बार ऐसा लगता है कि जो नीति निर्देशक हैं हमारे, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया जब वो नई शिक्षा नीति बनाने लगे कि सिर्फ दिल्ली में बैठकर बड़े विश्वविद्यालयों के एक्सपर्ट से बात करके नई शिक्षा नीति नहीं बनाई जा सकती और शिक्षा की व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए देश भर से उन्होंने अपने सुझाव मांगे, और शिक्षा मंत्री को अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने बार बार ये कहा कि साहब इन सुझावों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक नई शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा, आ चुका होता अगर ये कोरोना न होता हमारे सामने। लेकिन मेरा ये मानना है, और इससे आप सहमत होंगे सबके सब, कि ये ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ एक सप्लीमेंट्री सिस्टम, अभी भी क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसका कारण ये है कि उसके जो फिजिकल डायमेंशंस हैं, उसका खासतौर से भारत जैसे देश एक अलग स्वरूप। वेस्ट में हम कहते हैं कि हमारा जो टीचर है वो फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, ये तो कोई भी कर लेगा। आज के किसी भी ऑनलाइन डिवाइस के जरिए हम मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं, तो टीचर की भूमिका फिर कहाँ रह जाए। हिंदुस्तान में हमेशा हम मानते रहे, जब हम गुरु शिष्य की बात करते रहे, कि टीचर का रोल जो है वो गाइड और मेंटोर का। दुर्भाग्य ये है कि लगता है कुछ हद तक हम अपनी इस भूमिका से अलग। शिक्षा भी अपने स्वरूप में यूटिलिटेरियन होने का मतलब ये रहा कि जो नौकरी दिला सके, जो तत्काल फायदा कर सके, जो मौलिक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा, वह स्वरूप कहीं दिखाई देना बंद होने लगा। पूरी तरह बंद हो गया ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगता है जैसे थोड़ा कम हो गया। तो हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम अपने मूल स्वरूप को कैसे। दो चीजें मुझको दिखाई। एक तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का जैसे व्यवस्था से एलियनेशन हो, यह व्यवस्था उनके लिए है, और यह दो तरफा व्यवस्था है कि हम उनको देते भी हैं और उनसे रिसीव भी करते हैं। यह व्यवस्था कहीं से भंग होती नहीं। ये जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, यह हमको दूर करना पड़ेगा। दूसरा कि ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे जॉयलेस होती चली जाती। और अब आप देखें कि जो सबसे बड़ी समस्या से हम आप जूझ रहे हैं वो ये है कि क्लासरूम अटेंडेंस नहीं, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं क्लास। तो हमें अपने आप में आत्ममंथन करना पड़ेगा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे क्लास। वो घर से निकलना चाहते हैं, निकलते हैं, बाजार में घूमते हुए आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कॉलेज कैंपस में कैंटीन में होते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं, क्लासरूम में जाने से बचते। तो यह ऐसा क्या हो गया है कि बच्चा क्लासरूम में अट्रैक्टेड नहीं हो रहा है, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, और हर किसी को इसमें अपने अपने ढंग से सोचना होगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं होता। शिक्षा को कैसे हम न केवल ज्ञान परक बनाएं, बल्कि उस पूरे प्रोसेस को हम एक क्रिएटिव रूप भी दें, जहां की बच्चा उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर सके। और अभी क्या हो रहा है कि हमारा सारा ध्यान होता है सिलेबस खत्म। सिलेबसेस भी हमारे ट्रेडिशनल हैं, हमने उसमें इनोवेशन बहुत कम किया। बोर्ड ऑफ स्टडीज में जो हम सुझाव करते हैं तो ये प्ले शेक्सपियर का पेस्टराइट है, इसको बदल के दूसरा लगा ले, या ये नई क्रिटिकल थियरी आई है, इसको हम ऐड कर ले। दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी कुछ कमोबेश ऐसा ही करते हैं। तो एक तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि यह जो शिक्षा हम दे रहे हैं, इंडस्ट्री वाले तो ये लगातार हमको सिग्नल दे रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ये कहा जाता रहा लगातार कि साहब आप जो पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, वो इंडस्ट्री के नीड से बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड।
वो बच्चा जो आप भेज रहे हो वो हमारे काम का तब बनता है जब हम उसको साल भर की ट्रेनिंग। तो यह तो देखना पड़ेगा कि समाज से जुड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था, और फिर उस व्यक्ति को के विकास की शिक्षा व्यवस्था, इस व्यवस्था में सिर्फ सरकारी जो ऊपर से निर्देश हैं उन्हीं की भूमिका नहीं हो सकती। ये हर कॉलेज की भूमिका होगी, हर विश्वविद्यालय की भूमिका होगी, हर विभाग की भूमिका होगी, हर शिक्षक की भूमिका। जब हम इस दिशा में देखना शुरू करेंगे कि कैसे हम शिक्षा को, एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्कूल को फैक्ट्री कहा कि दिस इज नॉट ए स्कूल बट ए फैक्ट्री, इसी संदर्भ में कहा। ये बात उन्होंने तकरीबन 100 साल पहले। तो आज भी हम उससे कोई बहुत अलग नहीं हूं, हमको ये देखना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करके आपको इस बात को आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इन दिनों जो हम क्वेश्चन पेपर्स पूछते आ रहे हैं पिछले सालों में, हर सेमेस्टर में या एनुअल सिस्टम में, वो 100% प्रेडिक्टेबल। किसी भी इंटेलिजेंट टीचर को आप पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का दे दीजिए, वो क्वेश्चन पेपर आपका प्रेडिक्ट कर देगा कि क्या पूछा है। तो यह डिनोट करता है कि शिक्षा की क्रिएटिविटी खत्म हो। हम बिल्कुल लीक्स पर चल रहे हैं कि वही घिसे पिटे सवाल, वही घिसे पिटे जवाब, और उन्हीं के सहारे पूरी परीक्षा व्यवस्था और उन्हीं के सहारे पूरी शिक्षा व्यवस्था। तो सबसे पहले तो शिक्षक के रूप में हम यह देखें कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को हम मॉडिफाई कितना करें और कैसे। फिर उस कंटेंट को लेकर के हम आए अपने क्लास और सिर्फ लेक्चर्स न दें, अपने सेशंस को हम इंटरैक्टिव बनाएं, हम बच्चे को उस लर्निंग प्रोसेस का भागीदार बनाएं, पार्टिसिपेंट बनाएं। जब बच्चा ये महसूस करेगा कि सिर्फ वह एक पैसिव लिसनर नहीं है, उसको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, अपनी बात कहनी है, तब फिर वह आपके साथ इंटरैक्ट, अपने प्रॉब्लम्स शेयर, आपसे दिशा निर्देश, और वह दिशा निर्देश फिर शिक्षा के सही स्वरूप की ओर उसको ले जाएगा। यह करने की एक आवश्यकता है। जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक हमारा ये सारा प्रयास जो हम करते हैं कि कैसे हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, वह साकार नहीं होगा, सफल, क्योंकि हम मूल समस्या की ओर जा रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों की ओर जा रहे हैं। जो आधार है, एक पूरी शिक्षा व्यवस्था को दो आधार पे हम आते हैं, क्लासरूम टीचिंग के आधार पे आते हैं और उसके आधार पर ली गई हम जो परीक्षाएं करते हैं उसके आधार पर। दोनों ही स्थानों पर हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं, और जब तक हम इसे सक्षम और सबल नहीं बनाएंगे तब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपने शिक्षण संस्थान को, अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटीज को वो मजबूती नहीं दे पाएंगे जो मजबूती की हमें देनी चाहिए। शिक्षा दो फैकल्टीज की ओर होनी चाहिए, रीजन एंड इमेजिनेशन। रीजन के तहत हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और इमेजिनेशन के तहत हम क्रिएटिविटी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे को हम ऐसे ज्ञान की ओर ले चलें जहां वो खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज में चले, खुद वो इंक्वायरी करे, और जब तक वो इंक्वायरी नहीं करेगा तब तक वो जो हम चाह रहे हैं उससे, जो चाह रहे हैं हम अपने शिक्षण संस्थाओं से, वह नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम यह देखें कि टीचर आज क्या। ईमानदारी की बात यह है कि हम अपने को बढ़ाने, जब तक हमारे अंदर हंगर ऑफ नॉलेज नहीं होगा, हम अपने सोर्सेस को नहीं टटोलेंगे और डे टू डे वर्किंग में हम उसको डेली बेसिस पे इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने आप को, सारी उम्र अगर हम अपने आप को लर्नर नहीं मानेंगे तो शिक्षक के रूप में, गिवर के रूप में हमारा विकास नहीं होगा जब तक हम टेकर नहीं, जब तक हम रिसीवर नहीं बनेंगे हम गिवर नहीं। तो हमको यह कोशिश करनी है कि पहले तो हम अपने आप को, अपने भंडार को बढ़ाएं, और फिर उस भंडार को हम अपने छात्रों तक कैसे पहुंचाएं। हम चाहे जितने भी ज्ञानी हो, हमारे ज्ञान का लाभ हमारे बच्चे को तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उसको कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से इंस्टेंसेस में हम ये पाते हैं कि कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं ये कमी। टीचर जानकार है, टीचर ज्ञान देना चाहता है,
लेकिन एक तो वह थोड़ा इम्पेशेंट, वो बच्चे के प्रॉब्लम को, एक टीचर वह आइडियल है जो मिडिल लेवल पे चलता है, ऊपर पे भी नजर रखता है और नीचे पे भी नजर, तो फिर वह दोनों की समस्याओं को देखता है और कहता है। हम कमजोर बच्चा जब सवाल करता है तो इम्पेशेंट, उसको डांटने लगता है, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, बैठ जाओ, तो इससे वह बच्चा डिस्करेज हो जाता है। तो पहले तो हम अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें। कम्युनिकेशन हमारा तभी इफेक्टिव होगा जब हम अपने नॉलेज, अपने फैक्ट के बारे में श्योर हो कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। और फिर एक लैंग्वेज पे भी हमारा, ये सिर्फ लैंग्वेज के टीचर्स के लिए नहीं, साइंस वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है, आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट वालों के लिए भी है कि उनका कम्युनिकेटिव स्किल अच्छा हो। और यह कम्युनिकेटिव स्किल विद्यार्थियों का अच्छा हो, यह तो अनिवार्य हो ही गया है। यूजीसी ने इसलिए नए सीबीएसई सिस्टम में एक कंपल्सरी कंपोनेंट डाला है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम कंपल्सरीली अपने आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के सारे स्ट्रीम्स के, इवन बीटेक के बच्चों को, बी फार्मा के बच्चों को, बीबीए एनडीए के बच्चों को टेक्निकल स्किल के साथ साथ कम्युनिकेटिव स्किल भी पढ़ाते हैं। तो यह स्किल टीचर ही डेवलप करेगा, पहले अपने आप में डेवलप करे और फिर जो है वह अपने विद्यार्थियों में उस स्किल को डेवलप करे। जब यह वो कर लेगा तब एक गिव एंड टेक का जो प्रोसेस है एंटायर एजुकेशन का, वह प्रोसेस स्मूथ। शिक्षक के रूप में एक और महत्वपूर्ण भूमिका समाज के लिए भी है और व्यवस्था की, वह रिसर्च। अभी जो हम लोगों को नई शिक्षा नीति का एक प्रारूप दिया गया था, उसमें यह स्पष्ट किया गया कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दोनों में रिसर्च पे एम्फेसिस होगी। जो डिवीजन उन्होंने किया है उसमें यह किया है कि कॉलेजेस में रिसर्च की जो एम्फेसिस होगी वह कंपोनेंट थोड़ा कम होगा, टीचिंग पे ज्यादा बल होगा। यूनिवर्सिटीज में भी टीचिंग होगी, रिसर्च पे ज्यादा बल, लेकिन रिसर्च दोनों जगहों पे। और रिसर्च का सीन हमारा बिल्कुल ही डिसमल है, ये हम सभी जानते एज टीचर्स। और हमारे राजनेता भी कह चुके हैं, हमारे राष्ट्रपति कह चुके हैं, सारे कई मंचों से ये बात कही जा चुकी कि भारत में जो रिसर्च का स्तर है वह अप टू द मार्क नहीं। उसका एक कारण यह है कि रिसर्च, जैसे हम पीएचडी के लिए रिसर्च कराते हैं तो हम ये मानते हैं कि बच्चा हमारा एलिजिबल हो जाएगा टीचिंग जॉब में, तो यह पर्पस को ही डिफीट कर देता है। जब आप थीसिस इवैल्यूएट करते हैं किसी भी कैंडिडेट, तो दो पैरामीटर कंटेंट के लिहाज से इसका होता है जिस पर हम कमेंट करते हैं एज एक्सपर्ट्स। हम ये कहते हैं कि यह जो थीसिस है क्या ये नए ज्ञान को का जन्म दे रही है कि वो लीड कर रही है, या क्या ये पुराने ज्ञान का नया इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत कर रही है। यानी दोनों ही अर्थों में जो थीसिस है, इट मस्ट बी ए कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली वास्ट केसेस, मैं ये नहीं कहूंगा सारे केसेस में, लेकिन वास्ट केसेस में दिस इज नॉट सो, ये हो नहीं रहा। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। और अब तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक कंपलसरी कंपोनेंट हो गया है बच्चों के लिए। मैं एक अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगा। वर्षों पहले की बात है, मैं एक विश्वविद्यालय में एज एन एक्सपर्ट गया था किसी और भूमिका में। वहाँ एक नए कुलपति महोदय ने ज्वाइन किया था और आपसी बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझसे कहा कि प्रोफेसर साहब, यहाँ रिसर्च की हालत अच्छी नहीं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा है कि आपके यहाँ एफिलिएटिंग कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स नहीं, डिपार्टमेंट्स होने से रिसर्च की एक नोडल एक्टिविटीज और कहीं ना कहीं एक गुणात्मक इसका असर होता है। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज में रिसर्च नहीं होती या अच्छी नहीं होती, लेकिन होता ये है कि हमारे जो साथी हैं, शिक्षक साथी, वो अपने को अपडेट नहीं करते। नतीजा ये होता है कि वह कहीं ना कहीं कमी रहे, रिसर्च मेथोडोलॉजी के नए टूल्स नहीं जानता है या अपने ऑब्जेक्टिव्स को धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है उसके दिमाग से, तो रिसर्च की क्वालिटी घट जाती है। कुलपति जी ने मुझसे कहा कि तो प्रोफेसर साहब मुझको क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा सर ऐसा करें आप कि इसके लिए वर्कशॉप रख लें या रिफ्रेशर कोर्स रख लें। फिर मैं चला आया। संयोग से कुछ दिनों के बाद उस विश्वविद्यालय के एक
टीचर से, अंग्रेजी के टीचर से मेरी मुलाकात। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हाल है आपके विश्वविद्यालय का, कुलपति जी कैसे हैं? तो बहुत विद्रूप के साथ उन्होंने कहा, अरे नए नए प्रयोग करना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या हो गया? तो कहने लगे पता नहीं किस पागल ने उनको सुझाव दे दिया कि टीचर का रिफ्रेशर कोर्स कराओ और वर्कशॉप कराओ। अब मैं जवाब में कह तो नहीं सकता था कि वो पागल मैं हूँ, लेकिन फिलहाल बाद में मुझको जानकारी हुई कि कुलपति जी अपने प्रयासों में सफल न हो सके। तो प्लीज यह एटीट्यूड न रखें। मैंने अभी कहा आपसे कि हम सभी लर्नर्स हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं। हम ये भ्रम न पालें कि हमने जो सीख लिया है वो काफी। जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे तब तक ना हम शिक्षा की प्रोन्नति की बात कर सकते, उन्नति की बात कर सकते, नई रिसर्च की बात कर सकते। अब आप देख लें कि प्लेजियरिज्म की एक नोटिस आ चुका है यूडीसी के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि अब आप यूडीसी के वेबसाइट पे हर थीसिस अपलोड करें। हम लोग कर नहीं रहे हैं। प्लेजियरिज्म के लिए कहा गया है कि आप अपने यहाँ, जैसे हम लोगों के विश्वविद्यालय में ऑर्कुंड का वो है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उससे एंटी प्लेजियरिज्म का सर्टिफिकेट थीसिस जमा होने से पहले वो लगा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम जगहों पे ऐसा हो, तो इसको हमको सुधारना होगा। फिर शिक्षक के रूप में मैं एक जानकारी आपको दे दूं, आप परिचित भी होंगे शायद, कि यूजीसी ने ये जो तमाम जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं इनको डिजोन कर, और पहले तो यूजीसी लिस्ट बनाई। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, यूजीसी की भी हालत वैसी ही है, कभी डालती है उस लिस्ट में, कभी उस लिस्ट से निकालती है। तो ये सारी चीजें करते करते अंत में पिछले दिनों यूजीसी ने एक केयर लिस्ट निकाली और कह रहे हैं कि साहब ये हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी को दोहरा दूं कि आपके अगले सारे प्रमोशंस किसी भी स्टेज में जहां एपीआई स्कोर में आपसे रिसर्च पब्लिकेशन कहा जा रहा है, वह तभी हो पाएगा जब आपका पब्लिकेशन केयर लिस्ट में होगा। केयर लिस्ट के बाहर के पब्लिकेशंस को प्रमोशन के लिए मान्य नहीं किया। और केयर लिस्ट में जो जर्नल्स हैं वो काफी ठोक बजा करके रिसर्च आर्टिकल्स एक्सेप्ट करते हैं। अभी केयर लिस्ट की दिशा में यूडीसी को भी बहुत आगे जाना है, क्योंकि जो हमारे ओरिएंटल सब्जेक्ट्स हैं वो केयर लिस्ट में बहुत कम है। स्कोपस की बात पिछले दिनों उन्होंने कही। स्कोपस एक साइंस ओरिएंटेड स्टोर हाउस, उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट खासतौर से जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है, वेद है, योग है, ज्योतिष है, इन विषयों के लिए बहुत कम स्थान। तो हमें यहाँ भी देखना होगा, सरकार को भी ये देखना होगा कि ये कैसे बढ़े। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि जब तक हम उस दिशा में नहीं चलेंगे, रिसर्च को हम इनोवेट नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल प्रोग्रेस में भी बाधा है, हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रोग्रेस में भी बाधा है, और ओवरऑल जो एजुकेशन सीन है हिंदुस्तान का वह भी अफेक्टेड हो रहा है। और अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों की परिस्थितियों जो हम लोगों ने अभी, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, उसमें एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि शिक्षा हमेशा कल्चर से जुड़ी हुई है, और जब विदेशी शिक्षा हमारे ऊपर थोपी गई तो सबसे पहला प्रयास यही किया गया कि इसको इसके कल्चर के मूल से हटा लिया जाए। अब हम यह बात करने लगे कि हम अपने कल्चर को कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में एस्टैब्लिश करें, सिलेबस के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से। और कल्चर किसी धर्म विशेष के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, ये पूरे भारतीयता की बात होगी। सब जो हमारे आज से लेके पिछले कई दशकों तक, सदियों तक के जो भी हमारे विचार रहे हैं, जो भी हमारे ज्ञान के स्रोत रहे हैं, उन स्रोतों का एक रिव्यू, और उनमें जो अच्छी चीजें हैं उन तक लौट। जब हम यह करेंगे तो हमारे शिक्षण संस्थान ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन की ओर बढ़े। थैंक यू। अब उधर से Thank you, sir. You very rightly said that this is up to us. What we want, where we want to take education, whether to infuse online education or to go for ancient classroom teaching. Online teaching is just a supplement in this period of pandemic. And we should keep patience in this crucial time because it will vanish soon.
but we should try our best to improve the quality of education and enhance the attendance of students in the classrooms. And this all can be possible as you guided us by having patience, by interaction, by infusing communication as well as technical skill among the students. Thanks a lot, sir. Thank you. Now I request our principal ma'am to under whose guidance this FDP program has been a successful venture, and give her vote of thanks to you. Well, very good evening, Professor Mukesh Ranjan ji. We are really delighted and deeply elated to have you with us in this session. And I have tried a lot to be with us. You know, you have been giving me number of reasons that you were very busy with your, you know, meetings and assignments and so some of the works. But I, you know, kept on ringing you again and again that, sir, we want to hear you. And definitely, and you have consented to be with us in this session. So, sir, we are deeply grateful to you for this very enlightening session, enlightening your discourse. Sir, what I really feel is that we have to self-realize that what we are doing. We have to leave that stagnation kind of a thing, or a complacency that yes, we know very much and now these students are fool and we can befool them easily. So this kind of tendency we have to leave, और हमें introspect करना होगा that how can we become like Vivekanand. क्यों हम ऐसा नहीं करते कि हमारे अंदर भी ऐसा हो कि हम हमारे followers बन जाएं. Students should be our followers. ऐसे followers बन जाएं कि they look towards us, they wait for us. ऐसा कुछ करें. क्यों हम इतनी complacent हो गए हैं कि बस ठीक है, हमें तनख्वाह मिल रही है और बस ठीक है, बस हो गया, बस अब हमें कुछ नहीं करना है. So this kind of tendency is, you know, taking us back, you know, as far as the global scenario is concerned. तो हम जो हमारा जो mindset है, what I really think is our mindset has to be changed. जब तक ये mindset change नहीं होगा, ये DNA में आ गया है थोड़ा सा, तो I think this DNA has to be improvised, has to be improved. क्योंकि इससे क्या होगा कि non-work culture जो हमारे अंदर आ गई है, वो it has to be rectified, it has to be modified. और धीरे धीरे अब UGC has to take the stringent steps like कि भाई promotion तभी होगा जब आपके अच्छे research papers publish होंगे, क्योंकि promotion easily मिल जाता है, सब कुछ easily मिल जाता है, हमें तनख्वाहें अच्छे से मिल जाती हैं. आप देखिए जो private companies में हैं, so they are given salaries only on their output result. कि उनका output क्या है, हमारा output accountability नहीं है, accountable नहीं है. तो जहां तक मैं मानती हूँ कि ये सब सेल्फ रियलाइजेशन का काम है, जिस इसी के द्वारा ही हम एक बेटर फैमिली, एक बेटर सोसाइटी और एक बेटर नेशन हम लोग बना पाएंगे. और मैं मानती हूँ जो IAS ऑफिसर्स भी बनते हैं वो हमारे द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं, और आज सारा कंट्री इज गवर्न्ड बाय दोस IAS ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स. तो थोड़ा सा कहना ये है कि अब हम धीरे धीरे जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में अच्छे होते हैं और पढ़ते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको मोटिवेट करना पड़ता है, जिनको इंस्पायर करना पड़ता है, जिनको मोल्ड करना पड़ता है. तो ऐसे हमें ऐसे पिन पॉइंट करने पड़ेंगे ऐसे स्टूडेंट्स कि उनको भी हम स्ट्रीमलाइन में ला सकें. तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपके द्वारा, और हमने इसको बहुत एंजॉय भी किया और इसको समझा भी, और हम चाहते हैं आगे हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे. ऐसा मैं मानती हूँ हमारे सब टीचर्स एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे कि हमें अपने स्टूडेंट्स को निगलेक्ट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट. चाहे हमें डाटा मेकिंग करना हो, जैसे हमारे पहले के इससे पहले डॉक्टर साहब बोले थे धर्मेंद्र जी की डाटा कलेक्शन और डाटा प्रेजेंटेशन में ही हम लोग लग गए हैं. तो ये तो सब चलता ही रहेगा, बट वी हैव टू बी कमिटेड टीचर्स, यू नो, वी हैव टू डेडिकेट अवरसेल्व्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. और तभी हम वी कैन टॉक अबाउट क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द कॉलेज और इन कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री. जितना भी और इसके साथ साथ ही फिर से, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, और हम वी हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग एंड मेडिटेटिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर, यू नो, different questions and problems facing the you know, quality parameters in our colleges, especially in UP and Bihar.
UP and Bihar, because I have visited number of colleges in South India. There I have seen that the kind of a seriousness is there between teacher and taught, but here that kind of a thing is missing. What I really feel is, so now I really urge all the faculty members that they have to shed this kind of a complacency, complacent feeling, and they should again be learners, as Professor M.R. Ranjan ji said, that we have to be learners. जैसे कि Longfellow ने भी कहा है कि life of noble men all remind us, life of great men all remind us to make our lives more sublime. तो इसलिए हमें अपनी लाइफ को sublime बनाने के लिए, और अपने स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं. तो अब इसी के साथ साथ ही बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा, और मैं मानती हूँ कि श्री राजेश जैन जी ने भी, हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत टाइम दिया, और जब भी हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया वो आए. तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रोफेसर मुकेश रंजन जी का. सर, we are deeply grateful to you for providing your precious moments with us and sharing your knowledge with us and your experiences with us. And I would like to invite our president of the management committee of Jain Girls PG College, Shri Rajesh Jain ji, to say a few words at the concluding session. Shri Rajesh Jain ji. हाँ जी सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. मैम सर से. मैडम थैंक्स तो आपका होना चाहिए कि आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइज किया जी. यू आर द बेस्ट, नो आई एम बेस्ट. मेरे जितने भी हमारे कॉलेज परिवार ने इसमें मेहनत करी है, धन्यवाद के पात्र साधुवाद उनको है. बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने. नहीं, बहुत ही अच्छा करा आप लोगों ने. आपकी प्रेजेंस भी हमें बहुत एनकरेज करती है. अरे मैडम, ये तो आपका वो थैंक्स है कि आप इतनी बात कहती हैं. आप सब इतने विद्वान लोगों में तो हम कम विद्वान है, बिजनेसमैन लोग हैं. चलो भाई चलो. हाँ, मुझे लग रहा है राजेश जैन जी अपनी बात कह चुके हैं, और ओवर टू coordinator of this program, Dr. Santosh Tomar, to conclude the program. And it was a very nice experience with all of you, sharing and talking together. And it was a ये हमारे लिए बड़ा मेडन एक्सपीरियंस था. इससे पहले हमने एक वेबिनार भी कराया, और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना फैकल्टी के लिए भी कुछ कराया जाए. तो ये इट वाज अ मेडन एक्सपीरियंस एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई थिंक जैसे कहने क्लासरूम टीचिंग को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, पर इसको भी हम ऐड कर सकते हैं. हमें ऐड करते जाना है. क्लासरूम टीचिंग करना चाहूंगी, रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस करने की बात कुछ नहीं है, पर हमें ऐड करना है. ऐड करना है और भी नए मोड्स, मीडियम्स, और ज्यादा से ज्यादा हमें मॉडर्निटी की तरफ तो हमें जाना है. आप देखिए, पहले हम बैलगाड़ी में चलते थे, अब हम कार में चलते हैं. हम क्यों नहीं कहते कि भाई हम तो बैलगाड़ी में ही चलेंगे या हम उसमें ही चलेंगे? क्यों? हम अपनी सुविधा के लिए तो हम सारी चीज अपना लेते हैं, और जहां हमें वर्क करना पड़ता है वहां हम सोचते हैं कि अरे व्हाई डू वी नीड ऑल दिस, हमें नहीं चाहिए, हम तो वो पुराना मोड ही सही है. तो धीरे धीरे बदलाव आता है लाइफ में. हम भी जब 20 साल के थे और अब हम 20 साल वाले तो नहीं लग रहे ना. तो बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं. ऐसे चेंजेस के साथ हमें रहना है, हमें सीखना है चेंजेस के साथ. तो चेंजेस के साथ ही हमारी फैकल्टी, मैं यही चाहती हूँ कि फैकल्टी धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करती रहे, नई नई चीजों के साथ अपने आप को इम्प्रूव करती रहे, और कोई भी किसी में भी नेगेटिविटी ना देखे. नेगेटिविटी बहुत है, चारों तरफ है नेगेटिविटी, बट स्टिल वी हैव टू सी द पॉजिटिव थिंग आउट ऑफ द नेगेटिविटी. तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि ये वेबिनार या जो भी कुछ है, ये तो COVID-19 हैज प्रॉम्प्टेड अस टू गो इनटू दिस काइंड ऑफ अ फेज. पर हमने कभी सोचा नहीं था, वी नेवर थॉट ऑफ दिस, कि हम इस तरह बात कर रहे होंगे और इस तरह देख रहे होंगे. मुझे लग रहा है ये तो दिस इज वेरी गुड मीडियम, क्योंकि इससे बहुत ध्यान से सुना जाता है बात को.
हम बहुत ध्यान से बातों को सुनते हैं। मुझे लग रहा है कि सेमिनार हॉल में बैठकर हम इतने ध्यान से नहीं सुन पाते इतनी बातों को, तो जितना ध्यान से हम इस मोड में सुन रहे हैं, तो जो लेक्चर्स हम स्टूडेंट्स को देंगे इस मोड में, मुझे लग रहा है दोज लेक्चर्स विल आल्सो बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो इसके साथ ही फिर से मैं एक बार श्री राजेश जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और साथ में संतोष तोमर जी को कहती हूँ कि अब वो इसको कंक्लूड करें और सब अपने फीडबैक फॉर्म हमें दें। और आज मिस कर लें, कल हमें बहुत खालीपन लगेगा कि भाई हम व्हाट वी आर डूइंग दीस डेज। मैम इसी के लिए मैं कुछ एंड पे कहना चाहती हूँ, प्लीज। यस प्लीज। जैसे हम लोग 6 दिन से एक साथ जुड़े हुए थे एफडीपी के लिए, रोज मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन हो रहा था, तो और आज लास्ट डे है, तो मेरे माइंड में इस टाइम पे कुछ थोड़ा से वर्ड्स आ रहे हैं, वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। Every ending is a new beginning, they say. On this note, I would like to thank everyone who all joined here and take out his time to make this initiative a successful venture, and hope we help them to create new stories for future. Thank you. थैंक यू प्रियंका मैम और आप सबका, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनकी गरिमा में उपस्थिति ने ही हमारे इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफल बनाया है। तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे सत्र हुए हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि फीडबैक हम लोग ले रहे हैं, असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं, और जितने भी कमेंट्स जो आ रहे हैं चैट बॉक्स में वो भी मैं देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हर कोई इससे लाभान्वित हुआ होगा और कमियां रह जाती है तो हम आगे कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो इन कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे कि जो कमियां हमारी है वो हम दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और इसके साथ मैं एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो असेसमेंट भी आएगा और इसके साथ आपको कल हम एक फीडबैक फॉर्म देंगे इसका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो आप सब उसे सबमिट करिएगा। इसके बाद फिर फीडबैक फॉर्म सबका जब सबमिट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो सर्टिफिकेट आने में अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। जैसे आपने 6 दिन हम लोगों को पूरे धैर्य पेशेंस के साथ सुना है, उसी तरीके से सर्टिफिकेट निश्चित रूप से आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो इसलिए और इसी उम्मीद के साथ एक बार मैं फिर दोबारा आप सबका बहुत बहुत अपनी जितने भी हमारे इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्राचार्य का, क्योंकि उनके बिना ये प्रोग्राम हमारा संभव नहीं हो सकता था और पूरा उन्होंने मतलब उतना सहयोग इतना हमें दिया और उन्होंने ही हमें इतना ज्यादा प्रेरित किया कि हमें मतलब ये प्रोग्राम कराने के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जितने भी मेरी पूरी टीम का जिन्होंने मेरा साथ दिया उन पूरी सदस्यों का धन्यवाद, और इसी के साथ साथ जितने भी प्रतिभागी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक चीज और कहना चाहती हूँ कि कल हमारी एक एलुमनी मीट और है, कल शाम को हमारे एलुमनी मीट है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। और एक हम ऑनलाइन ही एलुमनी प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा एनुअल जो एलुमनी प्रोग्राम नहीं हुआ था तो वो हमारा कल है। तो जो हमारे यहाँ से पढ़ी हुई हैं या आपकी नॉलेज में है कि जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो प्लीज उनको कनेक्ट करके इस पे। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मॉडरेटर्स who were present during the sessions and conducted the program, and I would like to thank Dr. Santosh Tomar also, who coordinated the program so well, so organized, and there was a kind of a smooth kind of a program we had throughout the sessions throughout 6 days. So a great thanks to all the faculty members who attended the program and who were there all the time with us, in both the sessions, and all the participants and attendees who attended the program, rather, either audio or visual ways. So once again, thank you all the staff members. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.